Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you are doing well in your studies and doing the revisions and watching the video on a regular basis. I want from you all to be sincere and be dedicated toward your work. So children, we have successfully completed our chapter Attitude and Social Coordination in our previous videos. Now in the today video I am going to start a new chapter which is Social Influence and Group Processes. Social influence and group processes. This is our new chapter, children. So let's study this chapter also with me. In this chapter, see, first of all, starting any of the topic, you should understand the basic. Why you are studying these chapters? See children, these all are the basics of psychology, where we are studying about individual difference, personality, stress, disorders, therapies. We learned about attitude. Now we are also learning about the group. What is the social influence? Social influence means the influence of or the presence of people on the behavior of person. लोगों के प्रेजेंट रहने पे बिहेवियर में क्या चेंज आते हैं. सोशल इन्फ्लुएंस और ग्रुप क्या है? ग्रुप क्या है? तो हमारा टॉपिक यही है आज का. We will study in detail about what is group. So चलिए मेरे साथ आप लोग स्टडी करेंगे ग्रुप के बारे में कि व्हाट इज ग्रुप. ग्रुप क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल. ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं तो whenever we are talking about group, so we are talking about more than one person. So group is an organized system of two or more individuals who are sharing the common goals and motive, and they are interacting, they are interdependent, they have a set of relationship among its members. All the members have some roles, responsibilities. The group have some norms, rules that regulate the behavior of other person and the members of the group. So group में इतनी सारी चीजें आई. ये एक organized system है. It is an organized system. किसका? Two or more individuals. Two or more individuals. Organized system है दो या दो से ज्यादा लोगों का. So children, you are understanding group क्या है? Organized system है. Two or more individuals का होता है. ये individuals जो हैं ये interact करते हैं. They are interacting. ये interdependent होते हैं. They are interdependent on each other. वे एक दूसरे पे dependent होते हैं. ठीक है? They share common goals and motive. They share common goals and उनके motives same होते हैं. और क्या होता है? They have an organized system. They have two or more individuals. They are interacting. They are interdependent. They share common goals and motive. They have some norms. Group में कुछ norms होते हैं.
नॉर्म्स होते हैं दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. ओके, देन दे हैव अ सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप. रोल होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल रिलेशनशिप. सभी मेंबर्स का रोल होता है ग्रुप में. जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली इज अ ग्रुप. फैमिली एक ग्रुप है. फैमिली में फादर इज द हेड और ग्रैंडफादर इज द हेड. ओके, उनका रोल अलग है. द फादर हैव अ डिफरेंट रोल, द मदर हैव अ डिफरेंट रोल, सिस्टर एंड ब्रदर हैव अ डिफरेंट रोल. तो इन फैमिली देयर आर सो मेनी मेंबर एंड एवरी मेंबर हैव सम रोल. And our family also having consisting a set of norms and which every member follow and that regulate the behavior of each and every member. So group क्या है? Group एक organized system है. Group में 2 से ज्यादा लोग होते हैं. Group में लोग interact करते हैं, communicate करते हैं, interdependent होते हैं. इंटरडिपेंडेंट यानी अगर एक कुछ करता है तो उसका एफर्ट दूसरे पे भी आता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप. आप ग्रुप में हो तो आप एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे से कोरिलेट करते हो. ग्रुप में कॉमन गोल होता है, मोटिव होता है सबका. ठीक है, एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन मोटिव होता है. ग्रुप में नॉर्म्स होते हैं जो सारे मेंबर फॉलो करते हैं. ग्रुप में रोल होता है हर एक मेंबर का. ठीक है, दे हैव अ सेट ऑफ रोल रिलेशनशिप अमंग इट्स मेंबर्स. वन इज सिस्टर, वन इज ब्रदर, वन इज फादर, वन इज मदर, वन इज सन, वन इज डॉटर. तो सबका रिलेशनशिप होता है, सबका रोल होता है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो सारी चीजों को मिलकर बनता है ग्रुप. नाउ हमें ये जानना है बच्चों कि ग्रुप हमने ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. यूजली लोग कहते थे ग्रुप क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल. सो कलेक्शन ऑफ पीपल यानी जहां लोग कलेक्ट होते क्या वही ग्रुप है? इट इज समथिंग अ रॉन्ग कंसेप्ट. लोगों का सिर्फ कलेक्शन ही नहीं ग्रुप होता. ग्रुप में और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. क्राउड भी कलेक्शन होता है लोगों का. क्राउड इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ पीपल. बट इज इट अ ग्रुप? Yes, it is a group, but it is a different kind of group. We will also read about different kind of group. Group भी बहुत तरीके के होते हैं. जैसे टीम है, ऑडियंस है, क्राउड है, ये भी ग्रुप है. But they are different kind of group. So before going to it, we will read about some of the characteristics. अभी तो हमने मीनिंग पढ़ा कि ग्रुप क्या है. It is an organized system of 2 or more individuals who are interacting with each other. They are interdependent on each other. They share common rules and motive. They have a norms and roles relationship among its members. Now, what are the different characteristics of group? So, let us study about the characteristics. I am rubbing it with the hope that you all have noted it down or you all have understand it. So let us discuss about the characteristics. Group की क्या characteristics होते हैं? The first one, it is a social unit. इसे group को एक social unit कहा गया है. Consisting of 2 or more individuals who perceive themselves as belonging to the group. The characteristics of the group help in distinguishing one group from the other and give the group its unique identity. So first characteristic about the group is it is a social unit. It is a social unit consisting of 2 or more individuals. It is a social unit consisting of 2 or more individuals. Now, what is the second characteristic? What is the second characteristic? A collection of individuals. अब क्या कह रहा है? पहले भी ये कह रहा था it is a social unit. अब क्या कर रहे हैं? ये collection है individual का. A collection of individuals
ठीक है, ये कलेक्शन है इंडिविजुअल. आई एम हाईलाइटिंग दोज पॉइंट, आई एम अंडरलाइनिंग इट विच आर इम्पोर्टेंट. अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल who have common motives and goals. Who have common motives and goal. जिसका गोल ये क्या है, ये इंडिविजुअल्स का कलेक्शन है और उनका जो मोटिव और गोल होता है वो सेम होता है. तो हम ग्रुप उसे कहते हैं जिसमें 2 से ज्यादा लोग हों और ये कलेक्शन है इंडिविजुअल का जिनका कॉमन मोटिव और गोल है. ग्रुप फंक्शन एदर वर्किंग टुवर्ड अ गिवन गोल और अवे फ्रॉम सर्टेन थ्रेड बीइंग द ग्रुप. The third characteristic, it is a collection of individuals who are interdependent. ये कलेक्शन है इंडिविजुअल का जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. Like what one is doing must have a consequences for other. मतलब ग्रुप में क्या होता है, जैसे फैमिली ग्रुप है, if something happens to the father or mother, it ultimately affect their family. It ultimately affect their children. So similarly, what happened to the children, it ultimately affect their parents. So ग्रुप में लोग मेंबर्स जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक को भी कुछ होता है तो वो दूसरे पे असर जरूर डालता है. ठीक है, आगे. इंडिविजुअल हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई नीड थ्रू देयर जॉइंट एसोसिएशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर. अब क्या है, अब क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सेइंग इट इज अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल. ये क्या है, लोगों की गैदरिंग है. अ गैदरिंग ऑफ, इट इज अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे डायरेक्टली और अदर इनडायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली इंटरेक्शन भी हो सकता है या इनडायरेक्ट, बट ये गैदरिंग है. नेक्स्ट, ये अगेन अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है हु हैव सेट ऑफ नॉर्म्स. फिर से नॉर्म्स की बात आ रही है. हु हैव अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रोल्स. Who have a set of norms and roles. ठीक है, सो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रुप के 1, 2, 3, 4, 5. If you write it, you will be able to score a very good marks. Children, see, concept सभी को मालूम होता है, but how to make it presentable is very important. Because ultimately in the board examination you have to write it. So you should know in which manner you have to write. So you should know the definition of the group. अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड टर्म्स. ठीक है, ग्रुप से ही रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि वी रेड अबाउट द, हम लोग पढ़ेंगे क्राउड क्या होता है, टीम क्या होती है, ऑडियंस क्या होती है. ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ओके, क्राउड क्या है, टीम क्या है, ऑडियंस क्या है, ये सब हमें डिस्कस करना है. सो द रिलेटेड टर्म्स आर, द फर्स्ट वन which we are going to understand is crowd. तो सबसे पहले हम लोग क्राउड समझते हैं बच्चों. क्राउड क्या है, क्राउड इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ पीपल. ऑब्वियसली क्राउड भी एक कलेक्शन है पीपल का, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप. कैसे? अ क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु मे बी प्रेजेंट एट अ प्लेस और सिचुएशन बाय चांस. Suppose you are going on the road and an accident takes place. Soon a large number of people tend to collect. This is an example of a crowd. There is neither any structure nor feeling of belongingness in a crowd. Behavior of people in crowd is irrational
and there is no interdependence among members. So what are the points which differentiate the crowd with the group? It is also a collection of people, but it is not a group. How? क्योंकि the reasons are they gathered there by chance. By chance ये gathered होते हैं, कोई purpose नहीं होता. They do not have a purpose. तो no purpose. No purpose means no purpose और goal. कोई ऐसा goal नहीं है उनका जिसकी वजह से वो gathered हुआ है. वो just एक accident हुआ and they gathered by chance. Then no structure. कोई structure नहीं होता. The crowd have no structure. कोई structure नहीं है कि it is a group which contain the 5 members, 10 members. ऐसा कोई structure नहीं है. No belongingness, no belongingness, no feeling of belongingness. Members में belongingness नहीं होता. जो gathered होते हैं वो सिर्फ by chance gathered हो जाते हैं, उनमें आपस में कोई feeling नहीं होती. ठीक है? Then no interdependence. एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि एक के कोई भी कॉन्सिक्वेंस का इफेक्ट सेकेंड पे पड़े. No interdependence. So these are some of the features of the crowd. They gathered by chance. They have no purpose. They have no structure, no feeling of belongingness, and no interdependence. Please note it down these points. Children, I am making you and I am trying to explain you the concepts in a more easy manner. And these points will help you to recall the things in your memory system. See, everything you get in the book, सब चीजें आपके पास book में हैं. But what see, you also read that audio visual memory. Okay, whenever anything enter into our memory system, visually also and auditory also, that remain in your memory system for a longer period of time. ठीक है? तो विजुअल ऑडिटरी का बहुत इफेक्ट होता है. ठीक है? तो आई थिंक इस वीडियो से आप बहुत कुछ गेन कर रहे होंगे. ग्रुप हमने समझा क्या होता है ना, ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे क्या होते हैं. आई थिंक मेरे साथ आप बहुत सी चीजें लर्न भी कर रहे होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने लर्न कर लिया होगा, बिकॉज आई हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम. ओके, सो अब हम ये जान रहे हैं कि क्राउड क्या है, क्राउड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो जो क्राउड होता है वो ग्रुप से कैसे डिफर है. वो बाई चांस गैदर होते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता. ग्रुप मेंबर्स का कोई उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें कोई बिलोंगिंगनेस नहीं होती. इवन दे डोंट नो ईच अदर एंड कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होता. तो दिस पॉइंट विल हेल्प यू. नाउ अनदर टर्म विच आर रिलेटेड टू द ग्रुप इज टीम. So let us study about the team. Team क्या है? Team is also a form of group, but how it is differ from crowd. Team. तो कैसे ये crowd से differ? We are going to study about the team. Team क्या है बच्चों? Team is a special kind of group. ये जो होता है ये special group होता है. It is a special group. It is a special kind of group. क्राउड के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि बाई चांस गैदर होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी. टीम के बारे में पढ़ते हैं. टीम एक स्पेशल ग्रुप होता है. मेंबर्स ऑफ टीम ऑफन हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल एंड कमिटेड टू अ कॉमन गोल एंड मोटिव. जस्ट अपोजिट टू द क्राउड, टीम में क्या होता है, टीम में लोग जो होते हैं उनका गोल और मोटिव कॉमन होता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. कॉमन गोल एंड मोटिव, उनका जो गोल और मोटिव होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है. ये एक स्पेशल ग्रुप है. members are mutually accountable for their activities. In team there is a positive synergy attained through the coordinated efforts of the member. Okay, so team क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जाना. टीम एक स्पेशल ग्रुप होता है. टीम में मेंबर्स के कॉमन मोटिव एंड गोल होते हैं.
वे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। टीम में अगर किसी को एक को भी कुछ हो रहा तो उसका इफेक्ट पूरे टीम पे होगा। इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दे हैव सेट ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेट ऑफ रोल्स एंड नॉर्म्स। टीम में रोल्स होते हैं मेंबर्स के, टीम में कुछ नॉर्म्स होते हैं, इसीलिए दैट इज वाई इट इज नोन टू बी द स्पेशल ग्रुप। टीम को क्या बोलते हैं? स्पेशल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि क्राउड क्या है और टीम क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये जानेंगे, इसी तरह से सिमिलर ग्रुप का एक फॉर्म होता है, वो होता है ऑडियंस। सो लेट अस स्टडी अबाउट द ऑडियंस। टीम आपने समझा, आपने क्राउड समझा, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑडियंस। ऑडियंस, ऑडियंस भी एक ग्रुप का फॉर्म है, बट ये डिफरेंट है ग्रुप से। ऑडियंस इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ पीपल, बट दे हैव असेंबल्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। उनका ये भी लोगों का कलेक्शन होता है, टीम भी लोगों का कलेक्शन है। Crowd is also a collection of people, but crowd is a collection of people who gathered there by chance. Okay, team is a collection of people, but they have a common motive and goal. They share the common goal. Every member, they are interdependent on each other. Audience is also a collection of people, but it is a collection of people who assembled or gathered at a place for a special purpose. जैसे to watch a cricket match, in an assembly you gathered, many people gathered there for the morning prayer. So उनका क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, ऑडियंस के साथ क्या होता है, इनका पर्पस स्पेशल होता है। They have a special purpose. ये gathered होते हैं तो पर्पस से gathered होते हैं, and that is make them different from the crowd. क्राउड का कोई पर्पस नहीं होता, दे रैंडमली गैदर्ड टू सी व्हाट इज हैपनिंग, एंड क्या होता है कि बाकी लोग को भी देख के दे विल ऑल्सो स्टार्ट स्टैंडिंग। बट ऑडियंस जो होती है वे अपने घर से आते हैं, एक जगह पे गैदर्ड होते हैं, तो वो पर्पस से आते हैं। ऑडियंसेस जो होते हैं ये जनरली पैसिव होते हैं। ओके, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग पैसिव होते हैं, ये लोग एक्टिव नहीं होते। बट कभी कभी ऑडियंस एक्टिव हो जाती है, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू अ मॉब। मॉब इज अनदर टर्म फॉर द कलेक्शन ऑफ पीपल, एंड दैट इज एन ऑडियंस विच में कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव। यही ऑडियंस जब कभी कभी फ्रेंजी हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है और एक्टिव हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि मैच देखते देखते कई सारे लोग खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं। तो ऑडियंस जल्दी ज्यादातर पैसिव रहती है, बट समटाइम इट बिकम एक्टिव, एंड विच इज नोन एज मॉब। चिल्ड्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर 1 marks. Don't consider any and point unimportant and neglect it. Everything are important. मॉब में क्या होता है, उनका डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है। देयर इज पोलराइजेशन इन अटेंशन एंड एक्शन ऑफ पर्सन आर इन अ कॉमन डायरेक्शन। मॉब बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय होमोजेनिटी ऑफ थॉट एंड बिहेवियर एज वेल एज इम्पल्सिविटी। मॉब का एक डेफिनेट पर्पस हो जाता है, जैसे कि हमें इसी को ही अटैक करना है या हम इसको ही चेयर अप करेंगे। एक डेफिनेट पर्पस हो जाता है, एक कॉमन डायरेक्शन हो जाता है, और जो बिहेवियर होता है मॉब का वो होमोजेनिटी ऑफ थॉट, यानी एक ही तरह का सोच रखते हैं और बिहेवियर रखते हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर करते हैं। सो आई थिंक यू हैव अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन these two terms, and you understand about these terms which are also related to the group: crowd, audience, team, mob. ठीक है? Now one important aspect which you all have to understand. So children, after understanding about these 4 terms,
let us study about one important concept which is a part of this group. The topic is difference between ग्रुप एंड टीम. ग्रुप और टीम में डिफरेंस क्या है? ये इट इज वाज द क्वेश्चन विच वाज यूजुअली आस्क्ड. ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम. ठीक है, ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस है? So what is the difference? Okay, so write down the difference. Here you will write down the group and segregate it and write down the heading team. The first point, and here the first point. So what is group? In group, performance is dependent on contribution of individual member. Whereas in team, both individual member and teamwork matter. Are you getting, children, what I am trying to explain? Group में जो performance होता है, ये जो performance है, ये हर एक का होना चाहिए. मतलब ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, ये जरूरी है. बट एज अ ग्रुप उतना नहीं, मतलब हर कोई परफॉर्म कर रहा है तो भी ग्रुप के फंक्शन चल जाएंगे. इट विल फंक्शन, इट विल वर्क. What I am trying to say that जैसे ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल होते हैं. अगर मान लीजिए सपोज there were 10 individual in a group, if 5 are working, still the group is working. But just opposite to team. टीम में अगर 10 members हैं तो all the 10 members have to work. It is not like that कि 5 members work करेंगे और 5 members नहीं करेंगे तो team will move on. It is not like that. टीम नहीं मूव करेगी. ठीक है, सो परफॉर्मेंस के डिफरेंस में ग्रुप में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. बट टीम में परफॉर्मेंस अगर आप अच्छा चाहते हैं तो ना ही नॉट ओनली द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, हर एक को इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा अपना, ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो दे हैव टू वर्क like a team. Individual contribution as well as team. ठीक है, ग्रुप में परफॉर्मेंस इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन पे होता है, बट टीम में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एज वेल एज टीम वर्क. टीम वर्क भी इंपॉर्टेंट है. ओके, आगे बढ़ते हैं. In group, the leader who is heading the group hold the responsibility for the work. But in team, not only leader, all the members are responsible toward the work. ये भी एक डिफरेंस है टीम और ग्रुप में. ग्रुप में जैसे फैमिली ग्रुप है, उसमें जो हेड होता है उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को मैनेज करना, सारी चीजें करना. सिमिलरली स्कूल इज ऑल्सो अ ग्रुप. स्कूल में जो हेड है, डायरेक्टर, द मैनेजर और द प्रिंसिपल, हु इज द हेड, सो दैट हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एवरीथिंग. बट इन टीम ऐसा नहीं हो सकता. टीम में जो हेड होता है, यानी कि जिसे हम लोग कैप्टन कहते हैं या वाइस कैप्टन, ओनली उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी से टीम नहीं चलेगी. एवरी मेंबर हैव टू पुट देयर एफर्ट. सो द सेकेंड पॉइंट इज, ग्रुप में head is responsible for everything. Head is responsible. But in team, not only head, but also members. ठीक है, members भी important role play करते हैं. Okay. So here we have completed today about the basics of the group. This video give you
and more enhancement toward your concepts and more make your concepts about the group will be clear. So बहुत सी चीजें हमने पढ़ी, ग्रुप की मीनिंग, ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स. We read about the characteristics of crowd, we read about characteristics of team, we read about characteristics of audience, how it gets converted into mob. We read that the difference between team and group. Group और team में क्या difference है, ये भी हमने समझा. So I hope children you understand whatever I had discussed in today's video, and this is for all. Thank you so much for carefully listening and watching this video. Thank you.